Okay. Good evening, everyone. I'm CA Sarika Deshpande Lindokar, moderator of this webinar. We are delighted to welcome you all in the webinar being organized by CCLEA and NPO Committee of ICAI. It is my pleasure to be a moderator in webinar on RERA, Professional Opportunities for CA, on 3rd of October from 5 to 7 p.m., being organized by Committee on Commercial Laws, Economic Advisory, and NPO Cooperative of ICAI. In a short while, we will start this webinar. I would like to apprise you about the CCLEA and NPO Committee. This committee is focused to encourage chartered accountants to shape strategy and policy that unlocks economic, financial, and social value while combining analytical foresight with commercial acumen. One of the core areas of this committee is to serve the multifunctional task of analysis, knowledge, dissemination, input to regulators on policy formulation, to develop and publish technical guidance, background materials, etc., and to create awareness for professional opportunities for chartered accountants in commercial laws, economic advisory, and NPO cooperatives. Our eminent speakers will talk RERA professional opportunities for CAs in this webinar, and we hope that the same shall be useful to members. So today we have with us our today's session speaker, CA Mahadev Birla sir. He is a dual qualified. He is advocate as well as CA. Let me introduce about today's speaker. Advocate CA Mahadev Birla is a practicing advocate. He is qualified chartered accountant also. Passed CA final examination in the year 2008. Having vast experience in the field of financial management, taxation management, internal audits, project audit, secretarial audits, company secretarial work, and management accounting across the various industries, especially real estate, construction, EPC services, manufacturing, etc. He is having a more than decade experience in the real estate industry, advise on RERA matters in various states like Gujarat, Maharashtra, Bengaluru, UP, Haryana, Rajasthan. Appear before Gujarat Real Estate Regulatory Authority, Gujarat Real Estate Appellate Tribunal, Maharashtra Real Estate Regulatory Authority, Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal, Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority in the matter related to RERA. He authored a book, Gujarat RERA Manual and RERA Case Law Digest, published by Taxman, co-authored a book, Maharashtra RERA Law and Practice, published by ICAI and Taxman, and co-authored a book, E-Filing Guide on Form 3 and Form 5 under RERA, published by ICAI Ahmedabad. He regularly writes on RERA for web media like Taxman, TaxGuru, ICAI Ahmedabad, Newsletter, and WRC ICAI Newsletter. Written more than 70 articles on RERA. He is a regular speaker for RERA at various forums like ICAI Ahmedabad, ICSI Ahmedabad, ICSI Lucknow, ICAI Lucknow, WRC ICAI Mahaseva Mumbai, CP Study Circle, etc. He is appointed as a co-chairman of Housing and RERA Committee of Builder Association of India. We are honored to have you here, sir. So now I request Advocate CA Mahadev Birla, sir, to start with the session. Welcome, Thank sir. you, Sarika ji. Yeah. Good afternoon, good evening, Thank everyone. You so much. Thank you, Sarika ji, for a nice introduction. And thank you, ICAI Committee on Commercial Law, Economic Advisory, and NPO Cooperative. And this is a very wonderful session for the chartered accountants professionals. Opportunity in RERA. अब ये opportunity in RERA जो है, how do you see this opportunity? And there are two types of opportunity according to my own experience. One type of opportunity which it is written in the RERA book, or we have to find out from the RERA book or RERA Act, we can say. The another opportunity, with my experience, I will tell you. First opportunity, the giving the lecture
or delivering a lecture on the RERA itself an opportunity. Now, everybody must be surprised at how this opportunity will help to the professionals. So to be frankly, this opportunity, this delivering the lecture on the RERA has created a lot of clients or generated a lot of clients for me. So this is one of the most opportunity. Second opportunity, I would like to say, I am from CA to I have become an advocate. So this is the second opportunity, because once I changed the area of my practice from a traditional practice to CA, I become an advocate, and now I am getting a more and more professional work which is related to RERA, which is not related to RERA. So the RERA has created an opportunity. What I mean to say here, because today we are discussing a topic opportunity, professional opportunity in RERA. So RERA Act have some thing which creates the opportunity for the professional like chartered accountant, but it's create another opportunity also. So different kind of opportunity. Another opportunity I will say, because RERA I could written a book, because RERA I could write an article. So these indirect opportunity had created a lot of professional work for me. It has generated a lot of professional work for me. So not only the opportunity which is, some professional work we do, which is there in the RERA Act, it's create an indirect way something different opportunity. So in short, I would like to say in the beginning itself, this RERA Act has an ample opportunity for a chartered accountants. Now it is up to us that how we apply our professional mind or professional judgment, how we apply that create a multiple opportunity which help our client as well as and which grow our professional work also. This is the very important thing to discuss for us. Now, can I share my screen, right? Yes, sir. So, first of all, we would like to understand the RERA. What is the RERA? I know most of the professional must be aware about this RERA Act, why it has come, what is the object of the RERA. I would not go much detail into it, that what is the object of the RERA, why the RERA has come, because it is almost 7 years. In 2017, RERA came into picture. Now we are into 2024. 7 साल हो गए हैं रेरा को आए हुए. तो मैं ज्यादा रेरा के ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं पहले जाऊंगा क्या रेरा के अंदर जो प्रोविजंस है जिससे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी एक चार्टेड अकाउंटेंट के लिए अवेलेबल है, क्या ऐसी चीजें हैं उस प्रोविजंस के बेसिस पे हम प्रोफेशनल अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं. फिर मैं कुछ प्रोविजंस रेरा के एक्सप्लेन करूंगा जो कि किसी क्लाइंट्स के लिए हम एडवाइज कर सकते हैं और हमारे लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है. इसी बहाने और इसी तरीके से हम थोड़ा रेरा के लीगल प्रोविजन भी समझ पाएंगे और हम हमारे क्लाइंट को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो भी हम समझ पाएंगे. Hope so. If I am going, speaking in Hindi, is it okay for everyone? If something is there, let me know. I will continue in English also. So the object of the RERA is, first and most important object of the RERA is regulation. So this act has established with the object to regulate the real estate sector. So friends, keep in your mind, this law is to regulate the real estate sector. It is not to run the business. It is to regulate the real estate sector. Second important object of this act is transparency. This act wants to bring some transparency into the real estate sector. How?
So multiple booking can be avoided, right? If promoter has taken a loan, this information would be available to the general. Whether the real estate developer has taken approval or not, whether some real legal issues are there with the project or with the promoter or not. So these kind of information would be available with the common people or who are the prospective allottee. Third and most important object of the RERA Act is protection. Protection of consumer in the real estate industry. अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे रेरा एक्ट में कहीं भी कंज्यूमर को डिफाइन नहीं किया गया है, बट फिर भी ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि ये जो एक्ट है वो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए है। कंज्यूमर कौन से? रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जो कंज्यूमर है उनके प्रोटेक्शन के लिए। फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द रेरा एक्ट इज टू establishment of the real estate regulatory authority and adjudicating mechanism. So if any allottee or customer has been any grievances, they can approach the RERA authority or RERA appellate tribunal. So this is the main object of the RERA Act. अगर हम इस एक्ट की बात करें, so this act is very small. It has only 10 chapters, 92 sections, and 42 definitions. So within a span of 2 or 3 days, within a period of 2 or 3 days, we can read this RERA Act and we can create a multiple opportunity in our professional life. How to understand the RERA? See, this is my personal way of explaining, personal way of learning the RERA Act. So this RERA Act we can be understand from a three angle, or rather we can say there are 3 buckets of the RERA, 3 B's of the RERA. So builder, buyer, and broker. So if our client is a developer, builder, obviously we are having a lot of opportunity. Now, if our customer is a buyer, our client is a buyer, or some buyer comes who is not a client, but he can become a client. Agent can also become a client. We can give our professional services to the agent also. So for all these 3, we can provide our professional services, and there are a professional opportunity for us in respect of the builder also, in respect of the buyer also, in respect of the broker also. Now, if we want to understand these 3 B's of the RERA, then what are the scope related to the developer? What are the scope related to buyer? What are the scope, or we can say rather, which things which are related to the builders, buyer, and broker, which we can understand in the RERA Act. So from the builder's perspective, the builder has to do the registration of project. Builder has to comply with some provision of the RERA. He has some duties, and builder has some right also. As far as a buyer is concerned, which things we should keep into the mind before buying any house, before buying any property in real estate project? If we book or if we buy any property, after that, what things we should keep into the mind? And when we are getting a possession, then what points we should keep into our mind? These are the things we have to understand. As far as a broker is concerned, yes, definitely there is a registration requirement, and some duties are prescribed under the Act for the real estate agent as well. Now, friends, I will not go beginning of some provisions. First of all, directly I will go to the opportunity which is available. Then we will understand some definitions which may create us some opportunity that how we can advise our client and how it can help
So in short, if we understand which kind of opportunities available for the CA, so there are a 4 type opportunity. First and most important thing is a compliance and certification. ये एक हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का पार्ट होता है, चाहे हम इनकम टैक्स कर रहे हो, चाहे हम जीएसटी कर रहे हो। जीएसटी में करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, एनुअल ऑडिट एनुअल रिटर्न होता है। इनकम टैक्स में हम रिटर्न भी फाइल करता है, टैक्स ऑडिट करते हैं, स्टेट्यूटरी ऑडिट करते हैं। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर अ सीए इज compliance and certification. This compliance and certification may be for the developer, may be for the real estate agent also. Second is the consultancy and advisory services. This consultancy and advisory services has a huge scope. Only the points comes that how we convert this consultancy and advisory things into the money, because ultimately money, I meant to say our professional fees. Generally we advise every client, right? But we don't charge. But that should not be there. This RERA has a huge scope for a professional. So even giving some advice to our client, whether it may be agent, whether it may be buyer, whether it may be builder, we can convert that opportunity in our professional growth. Third scope is there, representation before authority and tribunal. So friends, a chartered accountant can appear before the RERA authority. We all are aware that we go before the income tax authority in a scrutiny matter. We appear before the income tax appellate tribunal also. The same way, here also in the RERA authority and the RERA appellate tribunal we can appear. However, the way of representation before the authority and tribunal is completely different. Many professionals do not consider this point, that appearance or presentation before the RERA authority and appellate tribunal is different. They think that this is a similar kind of thing, or this is a similar to the representation before the income tax authority, income tax appellate tribunal, or GST authority or GST appellate tribunal. From my personal point of view and my personal experience as well, this is a completely different thing. And this is a completely different way to represent ourselves, because before switching to the practice as a legal professional, I was practicing as a chartered accountant, but my core area of practice was only and only representation before the authority and tribunal. So during the, I'm practicing since 2017. So almost in 6 years of my practice, I practiced only and only representation before the authority and tribunal. So this was my major work as a professional. But the way is completely different, and it's create a different value for a professional. Fourth and most important thing is legal drafting. Legal drafting is a very important. दो अभी तो AI आ गया है और काफी प्रोफेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ले रहे हैं, but through artificial intelligence also we can enhance our skill of legal drafting. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द चार्टेड अकाउंटेंट एंड अदर प्रोफेशन. द चार्टेड अकाउंटेंट
has a very good skill or has a very good knowledge in the subject. For them, if we put some more efforts, chartered accountant as a professional, if we put a more efforts, with my experience, I am telling you, we can do. Once we have a control or once we have a knowledge of our subject matter, it's become an easy for a legal drafting. Obviously, it's need some practice. It's take little bit time, but slow and steady, we can be in a better position. So this is again good opportunity for the legal draft. Now, what is the point of compliance and certification? हम जनरली यही समझते हैं कि कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन का मतलब हो गया कि हमको किसी भी डेवलपर के प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन करना है एंड वी चार्ज सम प्रोफेशनल फीस फॉर दैट और हमारा काम हो गया. हम जनरली यही देखते हैं बिकॉज हमारा जो रेगुलर जो रूटीन प्रैक्टिस होता है वो हमने इसी तरीके से डेवलप किया होता है. बट मेरा पर्सनल व्यू और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जब हम किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम उनको एक एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट बनाना पड़ता है, उनको एक एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट मीन्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस. आप देखेंगे तो रेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काफी रेरा अथॉरिटी जो है सब्जेक्ट टू कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, रेरा अथॉरिटी आस्क द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस and accordingly they need a certification from the chartered accountant. As a professional, what we do, we apply for the RERA registration, we charge some professional fees, but sometimes we forget that how we can create this work of certifying a cost of project and means of fine as a second source of practice, because it is not only relevant for the project registration also, because the same things, estimation of cost and cash flow statement, helps the developer to raise the fund for the project also. Being a chartered accountant, we can guide the developer in their estimation of the cost, or we can say we can guide the developer that how their cost can be saved. We can guide the chartered accountant, or we can advise the chartered accountant in preparing the cash flow statement as well as means of finance. So this is another scope of practice for a chartered accountant. अब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अलग आ जाता है कि काफी डेवलपर्स और जो काफी क्लाइंट्स होते हैं अपने, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट इट इज अप टू अस एज ए प्रोफेशनल दैट हाउ वी कन्वर्ट दिस स्कोप ऑफ वर्क एज एन अपॉर्चुनिटी or as a legal profession or as a professional work to generate the revenue, though we are certifying. Now, apart from that, when we are applying for the registration, we have to file a one form at the time of registration. That is, if I talk about the Gujarat, everywhere it is a form 3, that is chartered accountant certificate, is prescribed by the every state authority. This certification has to be given by the chartered accountant. This certification not only have a relevance for the registration of the project, ultimately the outcome or the object or the purpose of this certification is that this certification set or it decide the time, decide the value, money, which promoter can be withdrawn from the RERA bank.
सो ये जो सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही जितनी अमाउंट उस सर्टिफिकेट में विड्रॉल के लिए सर्टिफाइड हो रही है, प्रमोटर वो अमाउंट रेरा बैंक अकाउंट से निकाल सकता है। नाउ फॉर द बेटरमेंट और for the industry, for the consumer, or to fulfill the object of this act, especially I will tell you in the Gujarat, RERA authority has also issued one circular, and most of the banks, whether it is a government bank, whether it is a private bank, all the banks are asking a CA certificate whenever promoter go for the withdrawal of the amount from their bank account. So we have to take it seriously, the importance of this certification. It is not only for the registration. Now, another scope is that this certification which we are giving at the time of registration is not the only one-time scope. The RERA Act says that the promoter has to update about their progress of the project. So that when they update about their progress of the project, various state authority has prescribed some formats. And as per the prescribed format or the procedure, when the promoter updates their progress about the project, they provide architect engineer, they provide or they submit the engineer architect certificate, engineer certificate, and they submit the CA certificate also. Again, that CA certificate provide the information about the amount, or they certified the amount which can be withdrawn from the bank. Apart from that, various state authority has prescribed their format which provide that this CA certificate disclose the information related to the booking of the project, an amount collected from the customer, financial status, like whether the, or I can say the legal status of the project or unit, whether the any loan is taken or not, whether your unit is, encumbrance with the bank or not. So these kind of information we have to provide. So then another opportunity is the quarterly compliance. Like in income tax, we file a TDS return. Here, it is a quarterly return which is prescribed by the state authority. Though the act specifically does not say anything about that, but the state authority has prescribed, and according to that, when the quarterly updation is done, we provide a CA certificate at the time of quarterly updation. Another important part, like we do the audit in income tax audit, we do the audit as per the Companies Act, we do the audit under GST. Here also, I will not say it is an audit, but it is an annual statement of accounts, which needs to be certified by the chartered accountant. Now, important thing is that we do the tax audit for individual SSC, like whether it is a partnership firm, whether it is a proprietorship firm, whether it is a LLP, whether it is a company. We do the audit for a statutory audit for the company. But here is the case that for every project, we have to file a separate annual statement of account. So friends, here, you all are aware that GST say that every developer has to maintain a separate books of accounts for the project. Now, on the basis of that same books of accounts, here we have to give a separate annual statement of account for separate projects. Because the RERA Act is not promoter based.
or the registration is not for the promoter based. The registration is a project wise. So we are doing a separate registration for the separate project. So for the separate project or for the each project, we are doing a separate certification, that is the annual statement of accounts. Another opportunity for chartered accountant is the project scheduling. Generally, practically, I have not come across that many chartered accountants are doing. But yes, this project scheduling, we can help the developer and we can create a professional opportunity in respect of the compliance work. I'll take a 1 minute break, please. Now, so first and important role of a chartered accountant is a compliance and certification. Now, consultancy and advisory services. This consultancy and advisory services is not anywhere in the RERA Act. But how can a chartered accountant help the developer in structuring a project? So when we are doing a practice of income tax act. So when we are doing a practice of income tax act, we are doing a practice of GST act. We must be observing that this real estate industry is, various things, various complex provisions are there. By keeping that points into the mind, how we can advise our client to structure the project in such a way that it can help the developer to generate more and more revenue. We can do some tax planning. We can do the structuring of project that it can be more tax complied, more revenue generating. So the developer can avoid the litigation, can avoid the, that there would not be any chance that of, non-payment of tax, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि टैक्स चोरी का कोई चांसेस नहीं बचे. The way in which can we structure the project, and the another advisory part is financial management. So this is also the important part. Now, what is the structuring of the project? Whether the promoter should go into the joint venture, whether the promoter should go into the joint development, or whether it should be a co-development project. These are the three aspects which we can advise our client. अगर कोई client जाना चाहता है, मैं land owner कोई और है, our client is a developer who want to, develop a project for particular land on the land, then उसके लिए क्या advisable है, whether he should buy the land, whether he should go into the joint development, according to their financial situation, according to their financial planning. Joint development agreement करने से क्या benefit होगा, how the tax planning can be done, how, the project can be go very smoothly. So like this, we can have a, structuring a project and we can advise our client. These are the main important part. Now friends, legal drafting. अब आप देखेंगे legal drafting क्या है. अगर आप joint development agreement में अगर आपके client को ले जाते हैं और client बोलता है हमारा joint development agreement, we have opportunity to draft a
डेवलपमेंट एग्रीमेंट, हम हमारे क्लाइंट के लिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं। उस डेवलपमेंट एग्रीमेंट को हम जब ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हमारे को यही एक रेरा से रिलेटेड पॉइंट हमारे को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम डेवलपमेंट एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि जिससे वो जीएसटी कंप्लाइड भी रहे, जीएसटी प्रोविजन कंप्लाइड, वो इनकम टैक्स प्रोविजन कंप्लाइड भी रहे। joint development agreement में we are advising or we are doing a drafting for the land owner as well as, and we are doing the drafting for the promoter as well as, because ultimately it help to both. It is not only helping to the developer or the promoter, it will help to the landowner also. Like way joint venture agreement we can draft, co-development agreement we can draft. So these are the drafting aspects. Now drafting about not only drafting of the agreement, ड्राफ्टिंग ऑफ द कंप्लेन ऑल्सो। अगर आप देखेंगे तो रेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एवरी प्रमोटर हैज टू गिव अ और ही हैज टू सबमिट अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट टू सेल और ड्राफ्ट सेल डीड। अभी आप देखेंगे एज ए प्रोफेशनल तो दिस एरिया ऑफ प्रैक्टिस इज मेजरली इन द हैंड्स ऑफ द एडवोकेट्स, क्योंकि जो लोकल लॉ से अवेयर होते हैं एडवोकेट्स वो इस प्रैक्टिस में होते हैं। बट as a professional chartered accountant we never think for developing that practice. लेकिन अगर आप देखेंगे you are most aware about the regional language, चाहे आप गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, कहां पर भी हो, अगर आप आपकी रीजनल लैंग्वेज से अवेयर हैं, you know the local laws, तो वो ड्राफ्टिंग का काम आप भी कर सकते हैं। It will not go to the before the any other professional, but we chartered accountant also can do दैट प्रैक्टिस। सो हम केवल लीगल ड्राफ्टिंग कंप्लेन का ही नहीं रहता है, हम लीगल ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट टू सेल, हम लीगल ड्राफ्टिंग सेल डीड का, कन्वेंस डीड, हम लीगल ड्राफ्टिंग लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट का भी कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग अलॉटमेंट लेटर का होता है, ड्राफ्टिंग पोजीशन लेटर का होता है। अगर आप देखेंगे सर पोजीशन लेटर में क्या है, पोजीशन लेटर तो सिंपल होता है, डेवलपर एक सिंगल पेज पे दे देता है लिख के कि हमने आपको पोजीशन दिया, आपने इस तारीख को पोजीशन दिया है। अलॉटमेंट लेटर में कुछ नहीं होता है। बट दिस इज नॉट द फैक्ट। आई विल टेल यू टू मेनी डेवलपर्स आई एम एडवाइजिंग ओनली एंड ओनली ड्राफ्टिंग फॉर द पोजीशन लेटर। अब आप बोलेंगे सर पोजीशन लेटर में ऐसा क्या है? पोजीशन लेटर इस तरीके से देना चाहिए ताकि वो अपने डेवलपर को हेल्प करे और कस्टमर को भी हेल्प करे। सो इट इज नॉट एन ए स्मॉल थिंग्स, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से होना चाहिए, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए जो डेवलपर और क्लाइंट कस्टमर दोनों को हेल्प करे, जो पूरा रेरा प्रोविजन कंप्लाइड हो। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लीगल ड्राफ्टिंग। अब लीगल ड्राफ्टिंग की अगर हम बात करें तो जब कोई भी, अब ये लीगल ड्राफ्टिंग केवल डेवलपर के लिए नहीं है। अगर हम प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अगर कोई हमारे पास कस्टमर आता है तो उस कस्टमर के बिहाफ पे भी हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द डेवलपर। उस कस्टमर के लिए हमको कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी। अब काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट हम सोचते हैं कि हम लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम रेरा अथॉरिटी में अपीयर हो सकते हैं तो हम कंप्लेन ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। अपील फाइल करनी है तो अपील ड्राफ्टिंग भी हम कर सकते हैं। दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच हैव इन दिस रेरा एक्ट। अब हम बात करें आगे अपॉर्चुनिटी की। आप देखेंगे तो Sir, are you there? हेलो, सॉरी। Hello. No problem, sir. You can continue. सो हम बात कर रहे थे लीगल ड्राफ्टिंग एंड रिप्रेजेंटेशन के, तो हमने बात की पोजीशन लेटर ड्राफ्टिंग का। नाउ फ्रेंड्स, अनदर अपॉर्चुनिटी इज देयर एज ए प्रोफेशनल। आप देखेंगे तो रेरा एक्ट मैंडेट्स टू
फॉर्म एन एसोसिएशन ऑफ अलोटी, जिसको हम सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का काम अगर हम बोलते हैं तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का काम होता है। अब आप काफी अपने अपने एरिया में या अपने अपनी सिटी में, अपने स्टेट में देखेंगे तो अगेन दिस वर्क इज इन द हैंड्स ऑफ द लीगल प्रोफेशनल्स, बट एज ए चार्टेड अकाउंटेंट ऑल्सो वी कैन प्रोवाइड आवर सर्विसेज इन फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अलोटी। अगर मैं आपको गुजरात स्टेट की बात करूं पर्टिकुलरली, तो देर आर टू वे टू फॉर्म एन एसोसिएशन ऑफ अलोटी। पहला जो फॉर्म है वो है सेक्शन 8 कंपनी बनाने का। अब ये सेक्शन 8 कंपनी कौन बनाते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट। सो अगेन दैट इज अपॉर्चुनिटी। नाउ अनदर अपॉर्चुनिटी इज दैट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, जो कि लोकल लॉ में बनती है सोसाइटी एक्ट के अंदर। अब आप बोलेंगे सर ये भी एक एडिशनल स्कोप है हमारे पास। Another scope is there was registration of a conveyance deed. When we can draft a conveyance deed, we can, increase our team. We can hire more people in our organization, and we can create one team specifically for the registration, drafting of the conveyance deed, registration and drafting of the agreement to sale. So what I mean to say, we as a chartered accountant have a huge scope as far as the RERA Act is concerned, but because we are into the traditional work of the traditional practice of the income tax GST, so we are much more focused on only and on the registration part and the quarterly compliance and annual audit of the RERA. But this is not the only scope. We can enhance our scope in terms of the drafting, in terms of the society registration, in terms of the drafting of the various agreements. Apart from that, when we are now, मैं भी आपको बोलूंगा एक अपॉर्चुनिटी है हाउ वी कैन क्रिएट। आप काफी जगह देखेंगे तो जो प्रमोटर है ना, वो सिंपल वे में अपने प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देते हैं एसोसिएशन ऑफ अलोटी को। रेरा एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको वो प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देने का एसोसिएशन ऑफ अलोटी को। एंड नाउ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिसीव्ड, building use permission received, now the scope of the developer is over. Now it is up to the management of the society to take care of the project. This opportunity, मुझे अपने आप को दिखी opportunity, and I started advising the promoters that how or in which way the association of अलोटी जो है उनको प्रोजेक्ट ट्रांसफर करना चाहिए। अब ये कहीं भी रेरा में नहीं लिखा हुआ, रेरा एक्ट कहीं नहीं बोलता है कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना है। रेरा एक्ट क्या बोलता है कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो एज पर द अप्रूव्ड प्लान, सेक्शन प्लान करना चाहिए। प्रोमोटर्स की कुछ ड्यूटीज है, वो ड्यूटीज उनको कंप्लीट करनी है, वो सारी चीजें होने के बाद हैंड ओवर कर देना। अब आप काफी बार देखेंगे तो प्रोजेक्ट जो डेवलपर है वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देते हैं, बाद में लिटिगेशन आते हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं। एनीवे, लिटिगेशन और इश्यू आएंगे तो भी एक अपॉर्चुनिटी है, बट वो दोनों अपॉर्चुनिटी के बीच में एक गैप है। उस गैप को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? बाय वे ऑफ आवर प्रोफेशनल नॉलेज एंड आवर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सो व्हेन वी आर डूइंग एंटायर entire professional work of the developer, then obviously we can advise our client, we can draft one memorandum of understanding, we can draft one agreement, we can draft one document so that developer can transfer the project in a transparent manner, which will help the professional, which will help the customer, which will help the developer. अब आप देखेंगे जब आप किसी प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करते हैं प्रमोटर की साइड से, देन अब ये सारी अपॉर्चुनिटी कहीं लिखी हुई नहीं है। ये सारी अपॉर्चुनिटी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से कैसे अपने प्रोफेशनल करियर में और अपनी प्रैक्टिस में नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। और ये नई नई अपॉर्चुनिटी अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, हम उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हमारा क्लाइंट बेस इंक्रीज कर रहे हैं और हमारा रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। अब जब आप किसी प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करते हैं, अगर आपने किसी अच्छी तरीके से एडवाइस करी है, देन यू विल बी सिटिंग इन बिटवीन द प्रमोटर एज वेल एज सम टाइम बिटवीन द customer also. Then
you you know will be interacting with the customer, and that customer may convert as a your client also, not only for the purpose of the society handover, for many other purpose. So the society handover work is also another professional opportunity. We as a professional generally, avoid, or we, do not focus on that particular part. So this is another opportunity for us we can create. Now, most important thing in our profession for a chartered accountant, representation. How to represent before the RERA authority. Again, I will share my own experience with the professional friends. Section 56 of the RERA Act said that the chartered accountant can appear. अब ये चार्टेड अकाउंटेंट ऐसा नहीं केवल डेवलपर के लिए अपीयर हो सकते हैं. चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो अलॉटी के लिए भी अपीयर हो सकते हैं, एजेंट के लिए भी अपीयर हो सकते हैं. तो ये किसी के भी लिए अपीयर हो सकते हैं. अब आप बोलेंगे सर ये अपीयर तो हो सकते हैं. सो वी चार्टेड अकाउंटेंट कैन आर्ग्यू द केस. यहाँ पे इट इज नॉट, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये इनकम टैक्स प्रैक्टिस की तरह या जीएसटी की प्रैक्टिस की तरह नहीं है कि आप इनकम टैक्स अथॉरिटी या जीएसटी अथॉरिटी में जा रहे हैं. दो आई हैव नॉट, मैं कभी जीएसटी अथॉरिटी में अपीयर नहीं हुआ हूं, बट हाँ इनकम टैक्स अथॉरिटी में कुछ बार अपीयर हुआ हूं. वहां अगर आप देखेंगे तो आप किसी क्लाइंट के लिए अगर जा रहे हैं किसी स्क्रूटनी मैटर में, किसी अपील के मैटर में, तो आपका जो इंटरेक्शन होता है वो 1-to-1 होता है. सामने कोई भी कंसर्न ऑफिसर से, और आप खुद होते हैं या आपका क्लाइंट होता है साथ. आप जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसको आप क्लाइंट के बिहाफ पे रिप्लाई करते हैं, और आप उस मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं और पुट अप करते हैं बिफोर द अथॉरिटी, एंड यू गिव योर एक्सप्लेनेशन according to instruction of our client or with our knowledge, and we represent our client before the income tax authority. Here it is not the case. Here it is the case when you are representing before the authority, when you are representing before the appellate tribunal, it is a quasi judicial body. RERA authority is a quasi judicial body. तो आप देखेंगे इट इज लाइक अ कोर्ट. अगर हम इसको दूसरी भाषा में ऐसा समझा जाए तो ये कोर्ट है. इस कोर्ट में जो रेरा अथॉरिटी में जो मेंबर्स है, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, वो एक जज की चेयर पे बैठे हैं, और वो एक जज, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके क्लाइंट का केस. सामने आपके अपोजिट साइड के जो भी पार्टी है उनका एडवोकेट या उनके जो प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हो सकता है कभी कभार अगर आप कस्टमर की साइड से, बिल्डर की साइड से, तो हो सकता है सामने कस्टमर खुद ही आर्ग्यू कर रहे हो अपने केस. सो लाइक एडवोकेट, अगर आपने कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट की अगर प्रोसीडिंग देखी हो, तो ये जो प्रोसीडिंग है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, वो उस तरीके से होता है. अब मेरा एक अपने खुद के एक्सपीरियंस से आप सारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स को एक सजेशन है. हम कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप सबको पता होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट ने, जो कि हमारी मदर बॉडी है, उन्होंने अपने लिए एक ड्रेस प्रिस्क्राइब किया गया है. आई थिंक इफ आई मे नॉट बी रॉन्ग, आई थिंक इट इज अ ब्लू कोट एंड ब्लू ट्राउजर, blue blazer and white shirt, what I remember, and we have our tie also. हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो I don't think many chartered accountants follow this dress code. This is my personal observation. But when we go before the authority, with my own experience, I will tell you, we should use this dress code. It changes the mind. अब आप बोलेंगे सर ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी से क्यों इसका कोई लेना देना नहीं है. करेक्ट, इट इज नॉट हैज अ रिलेवेंस विद द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी. But when we have a professional opportunity, then how to represent, that is also the important point. क्योंकि अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं होगा तो हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होगी. आप मुझे सब देख पा रहे होंगे, मैं आज आपके सामने जो ये सेशन ले रहा हूं, इसमें आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मैं एक नॉर्मल प्रोफेशनल ड्रेस में हूं. इसी तरीके से मैं फर्स्ट बार
जब मेरा पहला केस आया था रेरा अथॉरिटी के सामने के, आई appeared in the same way. Then on the first day I realized that this is not the way to represent ourselves. I had some, I think I can say it is a good incident rather than saying a bad incident, but it was a good incident because I'm taking it positively. And I had some, heated conversation with the concerned officer who was hearing the case. But when next day I appeared on the next occasion or the next hearing, I changed my attire. I changed my way of representation. And friends, you will not believe, when I changed my attire and I changed my way of presentation, the matter also changed. It's turned around in my favor. Then after you will realize, when you go by this way, the people who are sitting, the people who are looking at you, they start giving the work. When you're representing when your client, आप इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में, जीएसटी की प्रैक्टिस में, मैं जहां तक समझता हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप 1-to-1 किसी से मिल रहे हैं. इट इज लाइक ओपन कोर्ट, जहां आपको लोग देखते हैं, जहां आपको लोग सुनते हैं, एंड विच अगेन क्रिएट अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी फॉर ए चार्टेड अकाउंटेंट. तो अगर मैं रेरा एक्ट की बात करूं, अगर सिंपल शब्दों में बात करूं रेरा एक्ट की, तो इस रेरा एक्ट में जो मेजर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, मैं समराइज करता हूं उसको. फर्स्ट जो है हमारा रजिस्ट्रेशन का काम है. रजिस्ट्रेशन हम डेवलपर के लिए करते हैं, रजिस्ट्रेशन हम रियल एस्टेट एजेंट के लिए करते हैं. रजिस्ट्रेशन करने के बाद रेरा रिटर्न का काम होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो जो क्वार्टरली कंप्लायंस होता है. रियल एस्टेट एजेंट के लिए भी रिटर्न फाइलिंग का काम होता है. रियल एस्टेट एजेंट के केस में हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन का काम नहीं होता, सो वी डोंट सर्टिफाई एनीथिंग, बट वी आर असिस्टिंग द, और वी आर हेल्पिंग, वी आर प्रोवाइडिंग ए प्रोफेशनल सर्विस टू द रियल एस्टेट एजेंट. रियल एस्टेट डेवलपर के केस में हम क्वार्टरली सर्टिफिकेशन करते हैं. इन एडिशन टू दैट, अगर बैंक कभी सर्टिफिकेट मांगते हैं तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम वो सर्टिफिकेट भी देते हैं. हम एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हम सर्टिफाई करते हैं. हम क्लाइंट के बिहाफ पे रेरा में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. अगर आप पूरे रेरा एक्ट में देखेंगे तो आपको जो फ्रंट में दिखेगा यही काम दिखेगा, लेकिन इसके अलावा जो काम हमें डेवलप करना, जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे पास है ड्राफ्टिंग का, वो हमारे पास है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का, वो हमारे पास है लीगल ड्राफ्टिंग ऑफ द पोजीशन लेटर, वो हमारे पास काम जो है वो सोसाइटी हैंडओवर से हमारे को एडवाइजरी करने का, हमारे को प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करने का, हमारे को डेवलपमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने का, हमारे को, आप समझिए, एक अगर प्रोजेक्ट में 200 मेंबर हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में 200 फ्लैट्स है, 200 शॉप्स है, अगर हम एक प्रोजेक्ट का अगर हम कन्वेंस डीड या एग्रीमेंट टू सेल, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, एग्रीमेंट टू सेल करना भी कंपलसरी और कन्वेंस डीड करना भी कंपलसरी. तो आप सोचिए क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है हमारे पास. हमारे पास बहुत सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी which we can grow as far as this RERA Act is concerned. And most and important thing is the representation. Huge scope is there in representation, but generally we avoid. मैंने 5 साल तक सिर्फ एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन, मेरा 10% प्रैक्टिस जो था वो मेरा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, 90% प्रैक्टिस ओनली एंड ओनली अपीयरेंस बिफोर द अथॉरिटी एंड ट्रिब्यूनल. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप देखेंगे, आप कभी भी आपके आसपास में अपने प्रोफेशनल सर्कल में आप देखेंगे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो जीएसटी और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं. वो अच्छे अच्छे सीनियर एडवोकेट्स जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं, दे हेल्प, दे असिस्ट देम इनटू द जीएसटी एंड इनकम टैक्स मैटर टिल द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. द सेम वे, व्हेन यू आर creating opportunity for a legal representation, you can
help advocates, senior advocates for the High Court matter, for a Supreme Court matter also. The scope does not end, or it is not limited to only the RERA authority or the RERA appellate tribunal. The scope is very, huge. This is my way for that RERA registration part. Sorry, this is the opportunity. अब हम थोड़े सेक्शन और इसकी बात करेंगे. अब आप पूछेंगे सेक्शन और इसकी बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है कि अगर हम हमारे किसी क्लाइंट को अगर समझा नहीं पाएंगे, हम हमारे किसी क्लाइंट को ये नहीं बता पाएंगे कि कैसे लिटिगेशन से अवॉइड किया जा सकता है. अगर आप क्लाइंट को ये बोले, अच्छा एक पार्ट और भी है, आप अगर रेरा रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं या कोई रेरा रजिस्ट्रेशन का काम कोई और प्रोफेशनल कर रहा है, तो आप जैसे देखा होगा आपने इंटरनल ऑडिट का काम होता है, आप उस तरीके से एक इंटरनल ऑडिट का काम भी ले सकते हैं. अच्छा, आपने ये भी देखा होगा काफी सारी जो प्रोजेक्ट है, काफी नहीं मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे डेवलपर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करवाते हैं. अब वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम होने के बाद जो पर्टिकुलर बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, बैंक है, वो अपने लेवल पे ऐसा चेक करवाते हैं कि जो प्रमोटर है वो रेरा कंप्लायंस पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे. तो आप उस पर्टिकुलर फाइनेंस कंपनी और पर्टिकुलर एनबीएफसी को भी आप अप्रोच कर सकते हैं और आप उनके पैनल में भी जुड़ सकते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जिन प्रोजेक्ट्स को उस बैंक या एनबीएफसी ने फंडिंग करी है, क्या वो सारी चीजें रेरा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे. क्योंकि अल्टीमेटली अगर किसी प्रोजेक्ट में फंडिंग हुई है तो उस पर्टिकुलर बैंक और एनबीएफसी का भी स्टेक आ जाता है और दे आर ऑल्सो कंसर्न विद द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. अब आप सोचेंगे इसमें क्या है सर, बट दिस इज अपॉर्चुनिटी. आई हैव एडवाइज मेनी बैंक्स, क्योंकि उनको ध्यान में रखना होता है कि कस्टमर का पैसा आया, रेरा बैंक में डिपॉजिट हुआ नहीं हुआ, मल्टीपल सेल हुई नहीं हुई, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट वे में हो रही नहीं हो रही है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ या नहीं हुआ, एनओसी बैंक से मिला या नहीं मिला. दिस काइंड ऑफ द वर्क ऑल्सो वी कैन टेक. अच्छा, ये काम हम एक डेवलपर के लिए भी कर सकते हैं एज एन इंटरनल ऑडिट. जैसे हमने देखा कोई प्रोजेक्ट डेवलपर है, अगर उनका कोई इन हाउस सारा काम हो रहा है, इन हाउस सारे वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बट उनके जो प्रोफेशनल एडवाइजर होते हैं उनसे सर्टिफिकेशन करवाते हैं. लेकिन क्या हम ये स्कोप ऑफ वर्क लेके उस प्रमोटर को अप्रोच कर सकते हैं ताकि हम उनका इंटरनल कंप्लायंस करें और उनको बाद में इश्यू नहीं आए. तो ये सारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है चार्टेड अकाउंटेंट के लिए जो कि कहीं रेरा एक्ट में नहीं लिखी गई है, बट यस वी कैन क्रिएट दिस अपॉर्चुनिटी फॉर आवर प्रोफेशनल, फॉर आवर प्रोफेशन. मैं ज्यादा इसमें कुछ बोलूंगा नहीं अभी, एंड आई विल गो डायरेक्टली टू द सम प्रोविजन. अलोटी, अभी मैंने आपको जब बताया था कि रेरा एक्ट में कंज्यूमर लिखा हुआ है, लेकिन कंज्यूमर वर्ड कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है. जो कंज्यूमर डिफाइन नहीं किया गया, यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया वो अलोटी. अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है. इसमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर एडवाइजरी. क्यों? आई विल गिव द एग्जांपल. सपोज आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो कस्टमर बोलता है कि सर मेरे को रेरा में कंप्लेन फाइल करनी है. तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि वो अलोटी है या नहीं. अगर वो अलोटी है तो वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे को जानना जरूरी है कि वो अलोटी है या नहीं. अब अलोटी है या नहीं है तो उसके लिए हमको अलोटी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी. अलोटी की डेफिनेशन क्या बोलती है? अलोटी की डेफिनेशन को हम अगर पढ़ें तो देयर आर टू टाइप ऑफ अलोटी. पहला जो अलोटी, पहला अलोटी कौन है? जिस पर्सन ने, जिस कस्टमर ने डायरेक्टली किसी डेवलपर से यूनिट बाई किया है. सो सपोज एक्स डायरेक्टली बाय द यूनिट फ्रॉम द वाई डेवलपर, सो एक्स बिकम एन अलोटी, और he booked the unit into the project of the Y, so X become an allotee. Now suppose X transfer that unit to A also become an allotee.
अब ए अलॉटी बन जाते हैं, लेकिन उसके राइट्स क्या है वो हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे एक्ट्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज एक्स की डेथ हो जाती तो उसके लीगल हेयर भी अलॉटी बन जाते हैं। सो व्हेन द यूनिट इज ट्रांसफर्ड बाय एनी अदर मीन्स, दैट पर्सन ऑल्सो बिकम अ अलॉटी। तो अगर आप इस रेरा एक्ट में अलॉटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मैं क्विकली इसको पढ़ूंगा। अलॉटी इन रिलेशन टू ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मींस द पर्सन टू whom the plot, apartment or building as the case may be has been allotted, sold or otherwise transferred। आप देखेंगे तो यहाँ अदरवाइज ट्रांसफर लिखा है, मतलब हमने किसी भी तरीके से उसको ट्रांसफर किया। और क्या लिखा है, पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, मोस्ट एक एक बहुत अच्छा आप देखेंगे तो आई विल अगेन शेयर माय ओन एक्सपीरियंस। लीज पे जो प्रोजेक्ट जाते हैं, अभी आपने देखा होगा, आई थिंक फाइनेंस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट आया है आरसीएम को लेकर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे। और रिसेंटली अभी आज या कल में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था आईटीसी को लेकर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे जहां पे प्रॉपर्टी लीज पे दी गई। यहाँ एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप रेरा एक्ट में देखेंगे तो जो पर्सन जो है ना, अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई यूनिट को लीज पे लेते हैं तो क्या वो अलॉटी है क्या? तो जजमेंट एक ऐसा आया बॉम्बे हाई कोर्ट का जिसमें ऐसा हेल्ड किया गया कि अगर लॉन्ग टर्म लीज है तो वो अलॉटी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पहली अपॉर्चुनिटी आ जाती है। सपोज आपके पास कोई डेवलपर आ रहे हैं और वो डेवलपर आके बोलते हैं कि सर हम तो पूरा प्रोजेक्ट लीज पे देने वाले हैं, तो क्या हमारे को प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है? अब आप एज ए सिंपल देखेंगे तो बोलेंगे कि सर हाँ आपको नहीं कराना है या कराना, वट एवर योर ओपिनियन वुड बी देयर, डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ द लीज। अब इसको लीगल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें? तो मेरे केस में ऐसे एक डेवलपर आए थे, उन्होंने डेवलपर के पास एक बैंक आए, राइट? तो बैंक ने बोला कि हमको सर ये जो बिल्डिंग है उसमें से कुछ यूनिट्स लीज पे लेने हैं। तो उन्होंने, बैंक ने उस प्रमोटर से रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा और उन्होंने बोला सर आपका प्रोजेक्ट में रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिना उसके हम आपकी प्रॉपर्टी लीज पे नहीं लेंगे। अब आप देखिए जो उन्होंने यूनिट्स ली थी, उस वो प्रोजेक्ट बहुत छोटा था, उस प्रोजेक्ट में बाकी सारी यूनिट रेंट आउट और लीज पे दी हुई थी। बट बिकॉज अब ये एक अच्छी प्रॉपर्टी जो थी, नंबर ऑफ यूनिट्स वो बैंक को जा रही थी और डेवलपर का मेन ऑब्जेक्ट यही था। बट बिकॉज बैंक ने बोला कि सर आपके पास रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है इसलिए हम नहीं ले सकते। अब आप बोलेंगे इसमें अपॉर्चुनिटी क्या हुई? 100 डेवलपर आए, उन्होंने बोला सर ये इश्यू इसमें क्या है? तो मैंने बोला सर इसमें आपको लीगल ओपिनियन ले लेना चाहिए और बैंक को दे देना चाहिए। अब एक सिंपली हम कह सकते हैं कि सर नहीं आपको लीज में है, लॉन्ग टर्म लीज नहीं है इसलिए आप रेरा में फॉल नहीं होंगे। बट हु विल एक्सेप्ट दिस? सो व्हाट इज द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी? यू गिव अ वन लीगल ओपिनियन according to my own personal view or judgment. मतलब chartered accountant cannot give a legal opinion. I may be wrong also, but yes, with the help of the other professional, we can draft one legal opinion. We are having a knowledge, we can generate some revenue. So these kind of opportunity are there. अगर मुझे एलओटी की डेफिनेशन ही नहीं पता है तो मैं ये कैसे ओपिनियन दे पाऊँ? So this is the opportunity I have created and I have given the advice. सो दीज वे द ये जो रेरा एक्ट है ना, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। हर एक सेक्शन, हर एक डेफिनेशन में हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके अपने प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हैं, हम हमारे लिए काम बढ़ा सकते हैं, हम हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये डेफिनेशन बताया। अब आप क्या करेंगे, जब लीगल ओपिनियन देंगे तो आप जजमेंट ढूंढेंगे, जजमेंट ढूंढ के उसमें से देखेंगे उसमें क्या डिसीजन लिया, उस तरीके से आप रेरा एक्ट के प्रोविजन जजमेंट्स को बेसिस पे देख के एक आप लीगल ओपिनियन दे सकते हैं। और वो लीगल ओपिनियन ने आपके लिए एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। अपार्टमेंट की डेफिनेशन में मैं आपको सिंपल सा इतना ही बोलूंगा कि जो वहां पे कोई सेपरेट, अब हम कभी भी बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हम जनरली घर की बात करते हैं। तो हम घर खरीदा, घर खरीदा, घर खरीदा। बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कोई सेपरेट बाइफर्केशन नहीं है बिटवीन द रेजिडेंशियल कॉमर्शियल यूनिट।
all the unit fall under the apartment. एडवर्टाइजमेंट, ये एक बहुत बड़ा स्कोप है सर, एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है। सो जो एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन है, इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप। अब आप जैसे मैंने आपको एलओटी की डेफिनेशन में बताया, ये एडवर्टाइजमेंट में हम आपको कैसे क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि काफी सारे क्लाइंट्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोजेक्ट का करते हैं, दे आर नॉट अवेयर विच काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, which kind, which way they are giving the advertisement, whether it is fall under the definition of advertisement or not। तो मैं सिंपल सा डेफिनेशन को पढ़ के आपको समझाऊंगा। एडवर्टाइजमेंट मींस एनी डॉक्यूमेंट, आप देखिएगा यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज ए एडवर्टाइजमेंट थ्रू एनी मीडियम, तो कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी मीडियम के थ्रू हो, एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर और अदर डॉक्यूमेंट और पब्लिसिटी इन एनी फॉर्म, तो हम चाहे पब्लिसिटी भी किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, इन्फॉर्मिंग पर्सन अबाउट अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और ऑफरिंग फॉर सेल ऑफ अ प्लॉट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, इनवाइटिंग पर्सन, तो हम पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, हम पब्लिसिटी कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या एडवाइजरी, अब आपने देखा होगा अगर ये एडवर्टाइजमेंट के बिना, अगर बिना प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के अगर कोई प्रमोटर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उस पर 5% की पेनल्टी लगती है प्रोजेक्ट कॉस्ट का। दो रेरा अथॉरिटी इतनी पेनल्टी लगाती नहीं है, बट इतनी पेनल्टी लगती है। तो हम हमारे क्लाइंट को ऐसा एडवाइस कर सकते हैं कि सर किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट जो है आपको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। कॉमन एरिया, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप देखेंगे तो जो कॉमन एरिया ना, अपार्ट फ्रॉम आवर ओन और अपार्ट फ्रॉम द यूनिट, मतलब एक घर को छोड़कर, एक किसी कॉमर्शियल यूनिट को छोड़कर, बाकी का जितना भी एरिया ना वो कॉमन एरिया में आ जाता है। और यही पॉइंट जो है हम हमारे क्लाइंट को एडवाइस करने में हेल्प करते हैं। आप काफी सारी जगह देखेंगे तो जो लिटिगेशंस जो होते हैं वो कॉमन एरिया को होते हैं, कॉमन एरिया के लिए। तो सपोज किसी कस्टमर ने कंप्लेन फाइल करी कि सर मेरे को यूनिट का पोजीशन तो दे दिया है, ऐसा होता था, अभी कम होने लग गया है। जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग थे उसमें पोजीशन दिया गया होता था बिना कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, लेकिन सर बिल्डर ने लिफ्ट नहीं लगाई है, बिल्डर ने गार्डन नहीं बनाया है, और वो कंप्लेन फाइल हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर कंप्लेन फाइल होगी तो हम तो रिप्रेजेंटेशन कर ही रहे हैं, उसमें क्या नया चीज आया। तो नया चीज ये है कि अगर हमारे को कॉमन एरिया की डेफिनेशन नहीं पता है, हमने अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने लिफ्ट नहीं बनाई है, राइट, तो वो हमारे क्लाइंट के लिए गलत भी हो सकता है। या हम किसी क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हैं लाइक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको एडवाइस करें। तो ये जो कॉमन एरिया की डेफिनेशन है, क्योंकि रेरा में ऐसा बोला गया है कि जब तक प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता उसको हैंड ओवर नहीं किया जाता है, बराबर। तो कॉमन एरिया जो पार्ट है, कॉमन एरिया का लिटिगेशन जब भी होगा, भले पोजीशन दे दिया है, अगर उसकी टाइमलाइन खत्म हो गई कंप्लीट करने की, तो सपोज 31 दिसंबर इज द टाइमलाइन, 31 दिसंबर तक काम नहीं किया तो उसका लिटिगेशन हो सकता है। अगर 31 दिसंबर, 30 जून को मैंने पोजीशन दे दिया है लेकिन मेरा काम कंप्लीट पेंडिंग है और मेरी प्रोजेक्ट एंड डेट भी आना बाकी है 31 दिसंबर, और उस ड्यूरिंग द पीरियड अगर कंप्लेन होती है, तो हम रेरा अथॉरिटी में ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये कंप्लेन जो है मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि अभी मेरा टाइम पीरियड बाकी है और अभी मैं काम करने का जो है वो पेंडिंग है, बट आई विल कंप्लीट विद इन अ टाइम पीरियड। सो दिस इज द एंटायर डेफिनेशन ऑफ द कॉमन एरिया। व्हाट इज द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब आप काफी बार देखेंगे कि काफी डेवलपर्स और काफी प्रोफेशनल्स का ऐसा जजमेंट, सो नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, एवरी प्रोफेशनल, रेरा एक्ट जब आया था तब उसमें ऐसा था कि अगर 1 मई 2017 से पहले अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है,
तो उस प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। तो ये जो पॉइंट था वो 1 मई 2017 से पहले का था, मतलब 1 मई 2017 से पहले अगर आ गया। अभी काफी टाइम ऐसा होता है कि डेवलपर्स या प्रोफेशनल्स का जजमेंट ऐसा रहता है कि सर 1 मई 2017 तो चला गया, 7 साल हो गए, अब प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया ना नहीं कराना है। तो बोलते हैं कि सर हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, बिल्डिंग यूज परमिशन आ जाता है, मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाता है, फिर हम बेचना चालू कर देंगे और रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया है। तो ये जो पॉइंट है और ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डेफिनेशन समझना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या बोलता है, पहला। दूसरा, एक ऐसा भी व्यू रहता है, हमने सपोज हमारे प्रोजेक्ट में 100 यूनिट्स है और 99 हमने लीज पे दे दी या रेंट पे दे दी, और हमारे पास सिर्फ एक यूनिट बचा है जो हमने किसी को सेल कर दी। उस केस में क्या होगा? क्या वो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा? उसके लिए हमारे को प्रोजेक्ट की डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डेफिनेशन के। पहला पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग, सेकेंड पार्ट है कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इनटू अपार्टमेंट, थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ लैंड इनटू प्लॉट्स और अपार्टमेंट, एंड फोर्थ इज द सेल। आप देखेंगे अगर किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अगर सेल है तो उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। वो रजिस्ट्रेशन चाहे आप बीयू आने के बाद करो या बीयू से पहले करो, अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। सो आप ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें मैंने जो वर्ड अंडरलाइन कर रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग ऑल और सम ऑफ, आई विल रीड दिस डेफिनेशन। As per section 2 subsection Z, and real estate project means the development of building or building consisting of apartment, converting an existing building or part thereof into apartment, or the development of land into plots or apartment as the case may be, for the purpose of selling all or some of the said apartment. तो आपने अगर एक भी यूनिट बेचा है तो आपको प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। Now I will go to the another provision before appearance before the। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वो ये है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 LD। ये क्या बोलता है, जो हमने सारे सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए और जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए किया, द प्रमोटर शैल एनक्लोज अ डिक्लेरेशन दैट 70% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फ्रॉम द अलॉटी फ्रॉम टाइम टू टाइम shall be deposited into the separate RERA account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost, and shall be used only for the purpose, provided that the promoter shall withdraw the amount from the separate account to cover the cost of project in a proportion to the percentage of completion project, provided further that the amount from the separate account shall be withdrawn by the promoter after it is certified by an engineer, an architect and a chartered accountant in practice. So केवल सीए का सर्टिफिकेट ही नहीं लगता है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और सीए तीनों का सर्टिफिकेट लगता है, दैट द विड्रॉल इज इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ द कंप्लीशन। फर्दर व्हाट प्रोविजो सेड? Proviso said that provided also that the promoter shall get his accounts audited within a 6 months after the end of the every financial year by a chartered accountant in practice, and shall produce a statement of accounts duly certified and signed by such chartered। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है सर इसमें? जब रेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम और जो क्वार्टरली रिटर्न के टाइम जो सर्टिफिकेट जिस चार्टेड अकाउंटेंट ने दिया है, वही चार्टेड अकाउंटेंट जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो साइन नहीं कर सकता है। सो एक रेरा प्रोजेक्ट के लिए उनको 2 चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एक जो उनके रेगुलर सर्टिफिकेशन कर रहे हैं और दूसरे जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाइड कर। करेक्ट? सो दिस इज अनदर अगेन अपॉर्चुनिटी। मैं थोड़ा सा अभी लीगल एस्पेक्ट समझा दूंगा इस क्लाइंट का, देन वी विल रैप अप दिस सेशन, बिकॉज जो मैंने अपॉर्चुनिटी थी वो मेजर कवर कर लिया। नाउ थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट समझा देते हैं कि रेरा में अगर कंप्लेंट फाइल होती है तो कौन कर सकता है, किस तरीके से होती है, किस तरीके से अपने को ड्राफ्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो अगर आप रेरा एक्ट में देखेंगे सेक्शन 31 में, तो रेरा की कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, तो यहाँ पे लिखा एग्रीव्ड पर्सन, एनी एग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल ए कंप्लेंट। जस्ट अ मिनट।
सो एनी एग्रीड पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेन, एसोसिएशन ऑफ अलॉटी कैन फाइल अ कंप्लेन। हमने देखा एसोसिएशन ऑफ अलॉटी किस तरीके से बनता है। ये मैंने आपको गुजरात की स्पेसिफिकली बात की, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो इवन एसोसिएशन ऑफ अलॉटी, अगर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना के भी कंप्लेन फाइल करते हैं तो वो भी रेरा अथॉरिटी इज कंसिडरिंग। बट अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल व्यू दैट जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी रेरा एक्ट में जो प्रिस्क्राइब किया गया है, जो लिखा गया है, वही एसोसिएशन ऑफ अलॉटी होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। एंड वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन होता है वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे रेरा में दो टाइप का एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म है। रेरा अथॉरिटी में अगर आप देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द रेरा अथॉरिटी दिया गया है, उस कंपोजिशन ऑफ रेरा अथॉरिटी में कौन कौन होते हैं, तो चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर होते हैं, मेंबर 1 एंड मेंबर 2, मतलब दो मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है, और एक एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म जो दिया गया है जहां पे अपॉइंटमेंट किया जाता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का। सो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होते हैं वो जुडिशियल बैकग्राउंड से होते हैं। जो अथॉरिटी में जो चेयरपर्सन और मेंबर होते हैं वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं। अब जो रेरा अथॉरिटी में जो कंप्लेन हमको फाइल करनी होती है, अगर हमको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में अगर हम कंप्लेन, अब भले हम उसको कंप्लेन बोलते हैं लेकिन वो एक एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन होती है कंपनसेशन के लिए, कि अगर हमारे को किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन मांगना है, और वो किसी प्रकार का कंपनसेशन किस में लिखा गया है, सेक्शन 12 में, सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 में, सेक्शन 18 में और सेक्शन 19 में। तो ये जो चार सेक्शन है इसमें कंपनसेशन जो मिल सकता है उसके लिए अगर हमारे को एप्लीकेशन और कंप्लेन अगर फाइल करनी है तो वो जाती है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में। और इसके अलावा हमारे को किसी भी प्रकार की अगर कोई भी ग्रीवेंसेज है उसके लिए हमको कंप्लेन फाइल करनी पड़ती है, वो फाइल करनी पड़ती है रेरा अथॉरिटी। और दोनों के लिए हर स्टेट ने अलग अलग फॉर्म प्रिस्क्राइब किए गए हैं। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में कंप्लेन फाइल करने के लिए अलग फॉर्म है, रेरा अथॉरिटी में कंप्लेन फाइल करने के लिए अलग फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया। सेक्शन 12 क्या बोलता है, वेरासिटी ऑफ एडवर्टाइज। वेरासिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, किसी प्रमोटर ने कोई एडवर्टाइजमेंट किया है और वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से अगर किसी कस्टमर को कोई नुकसान होता है, लॉस होता है, तो वो लॉस का जो कंपनसेशन है उसके लिए वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था एडवर्टाइजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक, हमेशा से मेरा एक एग्जांपल रहा है किसी भी फोरम में, जब भी मैं रेरा की बात करता हूँ और कंपनसेशन की बात करता हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा अभी तक मेरे सामने कोई आया नहीं है, बट मैं एक सिंपल एग्जांपल हमेशा से सबको देता हूँ। ये जो एग्जांपल है वो हमारी एडवाइजरी का पार्ट हो सकता है किसी भी डेवलपर को एडवाइस करने में। अब आप देखेंगे कोई भी डेवलपर जो है अपने प्रोजेक्ट का ब्रोशर बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट ब्रोशर को रेरा की वेबसाइट पे भी अपलोड करते हैं और कस्टमर को भी देते हैं, मार्केट में भी जाता है। इन वन ऑफ द माई केस, वन प्रोमोटर जो है उन्होंने रेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक ब्रोशर अपलोड करने जा रहे थे। वो ब्रोशर में उन्होंने ऐसा लिखा था कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो, उसके 2 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, 1 किलोमीटर दूर स्कूल है। इस तरीके का आप काफी सारे ब्रोशर देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। मैंने उन प्रमोटर को सिंपल सा एक ही क्वेश्चन पूछा कि सर आपने क्या मेजरमेंट किया है कि आपके स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, या हॉस्पिटल 2 किलोमीटर दूर है, या रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है? तो उन्होंने बोला नहीं किया है। तो मैंने बोला देन इट इज माई एडवाइस, दिस प्रोजेक्ट, दिस ब्रोशर शुड नॉट कंटेन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने उनको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया, और मैं एज ए प्रोफेशनल आप लोगों से भी शेयर करूंगा वो एग्जांपल। सपोज एक एक्स पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर एक सिटी में रह रहे हैं, और वो सिटी छोड़ के किसी दूसरी सिटी में जाता है। दैट पर्सन खुद है, उनकी वाइफ है, उनका बच्चा है, एग्जाम्पल, दिस इज ओनली एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, क्योंकि वो नए शहर में गए उनको नहीं पता है, ठीक है। और वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में उनको पता चलता है, और उस प्रोजेक्ट के, क्योंकि वो नए हैं तो वो ज्यादा इंक्वायरी नहीं करते, उनको घर लेना है। घर लेने के लिए वो गए, उन्होंने प्रोजेक्ट में देखा, लिखा था सर 500 मीटर की दूरी पे स्कूल है। अब उन्होंने सोचा मैं यहाँ पे घर ले लेता हूँ,
और वो जो पर्सन है एक्स पर्सन, उनके घर में एक टू व्हीलर है, उस टू व्हीलर से वो अपने ऑफिस आते हैं। तो वो उन्होंने वो घर बुक कर लिया और उनको लगा कि स्कूल तो 500 किलोमीटर दूर है, तो उनकी वाइफ जाके अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करके आ जाएगी, जो भी हो, वाई वॉकिंग। अब पता चला सपोज वो स्कूल 500 मीटर दूर नहीं है, एग्जाम्पल, वो स्कूल हो गई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। अब सपोज उनको डिफिकल्टीज आ गई कि सर वो तो स्कूल तो पैदल तो नहीं जा सकते, तो उनको एक घर में टू व्हीलर और नया खरीद, तो क्या उसका कंपनसेशन मांग सकते हैं? मेरा पर्सनल व्यू है यस। क्यों? यही सेक्शन 12 बोलता है। क्यों? क्योंकि मैंने उस ब्रोशर पे रिलाई किया, मेरे को उस घर खरीदने से पहले मैंने उस ब्रोशर पे रिलाई। अगर उस ब्रोशर में ऐसा नहीं लिखा होता तो शायद वो घर में नहीं लेता, और वो ब्रोशर पे रिलाई करके मैंने घर लिया, इसलिए मुझे एक नया टू व्हीलर खरीदना पड़ा, तो उसके कंपनसेशन में मांग सकता हूं, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू। अब आप देखेंगे तो एक बॉम्बे डाइंग का जजमेंट है, महाराष्ट्र रेरा का, हाईकोर्ट तक गया है। उसमें इस वेरासिटी का एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, और वो डिसीजन थोड़ा कस्टमर के फेवर में। आप देखेंगे प्रोजेक्ट में बहुत सारी अम्यूनिटीज प्रॉमिस की गई होती है, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रॉमिस की गई होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। हमारे को अगर हम ऐसा देखा जाए तो जनरल पब्लिक को एक सपना दिखाया गया होता है कि आपका घर इस तरीके का होगा, आपके ये फैसिलिटी होगी, आपको इस तरीके का ये सब मिलेगा। अब एक्चुअल में वो नहीं मिलता है तो क्या? अगर वो नहीं मिलता है और उसकी वजह से अगर किसी प्रकार का हमको कोई लॉस होता है, तो उस लॉस की कंपनसेशन हम मांग सकते हैं बाय वे ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन और कंप्लेन बिफोर द एडजुडिकेटिंग ऑफिस। सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 की क्या है? स्ट्रक्चर डिफेक्ट। हमने घर खरीदने के बाद 5 साल के अंदर अगर हमारे घर में किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर डिफेक्ट हुआ है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एज पर एग्रीमेंट टू सेल, अगर उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सर्विसेज नहीं है, तो 5 साल तक के अंदर अंदर हम वो कंपनसेशन अगर होता है तो वो कंपनसेशन हम बिल्डर से मांग सकते हैं। बिल्डर नहीं देता तो हम रेरा में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ये बोलता है सेक्शन 14 सब सेक्शन 3। डिले पोजेशन का कंपनसेशन हम मांग सकते हैं, अगर हमारे घर को मिलने में देरी हुई पोजेशन में, टाइटल डिफेक्ट है तो उसका कंपनसेशन मांग सकते हैं। सेक्शन 19 जो है वो जनरल राइट है। ये हो गया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास। अगर हमको रेरा अथॉरिटी में जाना है, रेरा अथॉरिटी में हम पोजीशन नहीं मिला है, एग्रीमेंट टू सेल नहीं बना है, सेल डीड नहीं हुआ है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं है, टाइटल डिफेक्ट, इस तरीके के बहुत सारे जो इश्यूज हैं, वो हम रेरा अथॉरिटी के सामने ले जाके हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब हम कंप्लेन किस किस के सामने कर सकते हैं? तो कस्टमर जो अलॉटी है वो डेवलपर के सामने, एजेंट के सामने कर सकता है, डेवलपर भी कस्टमर के सामने कर सकता है, डेवलपर एजेंट के सामने कर सकता है, एजेंट डेवलपर के सामने कर सकता है। कंप्लेन फाइल करने के तरीके क्या होते हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके होते हैं। ये रेरा अथॉरिटी का कंपोजिशन है जो मैंने आपको अभी बताया था। अच्छा, ये इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है कंप्लेन जो ड्राफ्टिंग की अगर हम बात करें, तो अथॉरिटी में जो फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया होता है उसमें हमको क्या लिखना होता है? हमको सबसे पहले हमारे जो कौन कंप्लेन कर रहा है, सामने वाली पार्टी का नाम, फिर हमारे को फैक्ट लिखने पड़ते हैं कि उस कंप्लेन के फैक्ट क्या है, फिर हमारे को लिखना पड़ता है रिलेवेंट सेक्शन क्या है, फिर हम मांगते हैं रिलीफ क्या है, हमारे को कोई इंटरिम ऑर्डर चाहिए क्या, बराबर है? फिर उसके बाद हम कंप्लेन कहीं पेंडिंग नहीं है ये लिखते हैं। अगर आप देखेंगे तो एडजुडिकेट ऑफिसर के सामने जो हम एप्लीकेशन या कंप्लेन फॉर्म होता है उसमें क्या लिखते हैं? हम वहां पे फैक्ट ऑफ द केस लिखते हैं और हमको क्या कंपनसेशन चाहिए, राइट? बिकॉज वी आर आस्किंग अ सिंपल कंपनसेशन देयर। सेम वे अगर आप देखेंगे तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर हम अपील फाइल कर रहे हैं तो वहां पे किस तरीके का ड्राफ्टिंग होता है? अगेन, पहले तो हम जो कंप्लेन फाइल कर रहे हैं वो विद इन द टाइम पीरियड है, फिर फैक्ट ऑफ द केस क्या, क्या हम रिलीफ चाहिए, क्या ऑर्डर हमारे से हमको एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल से। देखिए ये सारी पेनल्टीज के प्रोविजन है, आई विल नॉट गो इनटू दैट। अगर हमको रेरा को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो ये कुछ जजमेंट्स हैं, अभी तो उसके बाद काफी सारे जजमेंट्स और भी आ गए हैं। न्यूटेक डेवलपर जजमेंट, नीलकमल रिएटर जजमेंट, पाइनर अर्बन लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चित्रा शर्मा, विक्रम चटर्जी, निपुण सिंघवी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, नारायणी रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे कुछ जजमेंट हैं। अगर आप उसको
पढ़ेंगे तो ये रेरा एक्ट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और अपॉर्चुनिटी का भी एक बहुत अच्छा स्कोप है. Thank you, friends. I think this is a very limited scope for today's session. This is the books I have written on Gujarat RERA manual. This is recently we have written one book. This is the RERA Case Law Digest, which is a compilation of the various judgments of the Honorable Supreme Court, High Court, various state authority and the tribunals. Thank you, guys. Thank you for the patience hearing. Thank you so much, sir. It was wonderful hearing you. And before starting the session only, we have received a lot of interactions from the listeners. So, is it okay? So, shall I go for question and answer session? Yes, definitely, definitely. Yeah, okay. So, sir, I'll take the first question. The first question is, what are the requirements of RERA certificate for builders? कभी भी आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं, सर्टिफिकेट आप कर रहे हैं, मैं आपको एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. जब मैंने नया नया रेरा का प्रैक्टिस चालू किया था, देखिए जो रेरा की प्रैक्टिस हो या जनरल प्रैक्टिस हो, अगर हम हमारी खुद की अगर वैल्यू बनानी है, हमारे को इस प्रोफेशन की वैल्यू तो है ऑलरेडी, इसको और बढ़ाना है, इसको अगर एनहांस करना, आवर प्रोफेशन इज वेरी एस्टीम प्रोफेशन. ठीक है, देयर इज नो कंपैरिजन विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट. व्हेन आई स्टार्टेड द प्रैक्टिस इनटू द रेरा, आपको मैं बताता हूँ मेरी प्रैक्टिस कैसे डेवलप हुई. मैंने जब रेरा की प्रैक्टिस चालू करी तो मैंने आर्टिकल लिखना चालू किया रेरा पे. जब मैंने आर्टिकल लिखना चालू किया रेरा पे, तो उससे मेरे को क्लाइंट जनरेट होने लगे. अब क्लाइंट कैसे जनरेट होने लगे? तो सबसे पहले डेवलपर मेरे को कांटेक्ट करने लगे, बोले कि सर ये सीए सर्टिफिकेशन है, हमारे को रेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम चाहिए, आप साइन करके दे देंगे क्या? मैं आपको बताता हूँ 2017 में ही मैंने प्रैक्टिस चालू करी और बाय गॉड ग्रेस कोइंसिडेंस जो भी हो 2017 में रेरा आया. 6 महीने प्रैक्टिस को हुए थे और रेरा आया. अब क्योंकि नया एक्ट आया था तो मुझे लगा चलो इसमें अच्छा स्कोप है, कुछ करते हैं. तो आर्टिकल लिखना चालू किया, पढ़ना किया, तो क्लाइंट आने, इंक्वायरी आना चालू हुई. तो मैंने बोला ठीक है, सर्टिफिकेट तो हम दे देंगे, क्योंकि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उस समय सोचा नहीं था लीगल इतना स्कोप बढ़ जाएगा. तो बोले ठीक है सर, हम आपको सर्टिफिकेट बना के भेजते हैं, आप साइन करके दे दीजिएगा. यू लिसन टू द माई वर्ड्स. हाँ, क्या बोला उन्होंने? सर हम आपको सर्टिफिकेट भेजते हैं, आप साइन करके दे देना. मैंने बोला बॉस, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप मेरे को टेली का डेटा, आप मेरे को बैंक स्टेटमेंट, ये तो आप देंगे ना? बोले नहीं 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 सर, आप सर्टिफिकेट साइन करके दीजिए. यू विल नॉट बिलीव बॉस, आई डिनाइड. मैंने सारे मना कर दिए सर्टिफिकेट. मैंने बोला आई कैन नॉट डू. तो जो क्वेश्चन है ना कि हमको सर्टिफिकेशन के टाइम क्या ध्यान में रखना चाहिए, आई थिंक दिस इज योर क्वेश्चन मिस सारिका, करेक्ट? Yeah, sir. Yes, yes. So when you are certifying the things, you know the certification पे कस्टमर का पूरा फ्यूचर डिपेंड है आपके सर्टिफिकेट पे. क्योंकि वो सर्टिफिकेट क्या डिसाइड कर रहा है? वो सर्टिफिकेट डिसाइड कर रहा है लिमिट ऑफ विड्रॉल. जो रेरा बैंक अकाउंट में कस्टमर ने पैसा दिया है उसकी लिमिट डिसाइड कर रहा है. अगर आपने वो सर्टिफिकेट लेते देते समय अगर चीजों का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसा जो है वो डाइवर्ट हो सकता है, और आप देखते ही हैं. आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, बट आपने इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पैसा डाइवर्ट हो जाता है, और यही ऑब्जेक्ट है रेरा का, कि पैसा डाइवर्ट होता था और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता था. तो जब आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं या सॉरी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगिए. और आपने देखा होगा, मैंने सेक्शन 4(2)LD पढ़ा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 3rd नंबर पे आता है. उससे पहले किसका सर्टिफिकेट आता है? इंजीनियर का. उससे पहले किसका सर्टिफिकेट आता है? आर्किटेक्ट का. अब आप देखेंगे कि हमारा कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिकली आप देखिएगा इंजीनियर का सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है. इंजीनियर ये बताता है कि कितनी वैल्यू का काम हो चुका है. कि सपोज 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ के प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आई एम इग्नोरिंग द लैंड वैल्यू, 50 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो 50 करोड़ में से सपोज 50% काम हो गया, तो इंजीनियर बताएगा कि 25 करोड़ रुपए का काम हो चुका है. अगर 25 करोड़ रुपए का काम हो चुका है, तो इसका मतलब 25 करोड़ रुपीज की बिलिंग बुक्स में हुई होगी, एक्चुअल मटेरियल या लेबर ने काम किया होगा, राइट? सो जब आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप इंजीनियर सर्टिफिकेट लीजिए, उसको कंपेरिजन करिए बुक्स ऑफ अकाउंट से. आप आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा. आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट एक एक एक्टिविटी डिफाइन करके बताते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी का काम हो गया. तो जब आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो आप आर्किटेक्ट
इंजीनियर सर्टिफिकेट लीजिए, बैंक स्टेटमेंट मांगिए, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगिए, आप उसको प्रॉपर वेरीफाई करके देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं आपको ऐसा भी इंसिडेंट बताता हूँ, एक नया प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट जिसने प्रैक्टिस चालू करी, उसके पहला ही क्लाइंट था, उन्होंने रेरा का काम लिया। रेरा का काम जब उन्होंने लिया तो आप देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्होंने कुछ अमाउंट जो वो अनसिक्योर्ड लोन में दिखा रखी थी प्रमोटर। अब कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट होगा, प्राइमा फेसी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि वो अनसिक्योर्ड लोन है तो अनसिक्योर्ड लोन होगा, लेकिन एक्चुअल में यूनिट की बुकिंग थी। आप क्या मांग सकते हैं डेवलपर से? आप अलॉटमेंट लेटर मांग सकते हैं, आप उनको बोलिए आपके एग्रीमेंट टू सेल जो एग्जीक्यूट किए वो दीजिए, राइट? अब वो जो चार्टेड अकाउंटेंट है, कोइंसिडेंटली और अनफॉर्चुनेटली उस केस में, उस मैटर में, उस चार्टेड अकाउंटेंट के ऊपर ऐसा एलिगेशन आ गया कि उन्होंने गलत सर्टिफिकेट। प्रैक्टिकली देखा जाए तो चार्टेड अकाउंटेंट ने कोई गलत सर्टिफिकेट नहीं दिया, बट क्योंकि प्रमोटर ने बुक्स ऑफ अकाउंट से इसी तरीके से पहले बना रखे थे कि वो अनसिक्योर्ड लोन में खड़ा था, तो आप अलॉटमेंट लेटर मांगिए, आप आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, आप इंजीनियर सर्टिफिकेट मांगिए, बुक्स मांगिए, बैंक स्टेटमेंट मांगिए, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर उनसे लीजिए, जिसमें आप ये लिखिए सारी चीजें कि उन्होंने कितना अनसिक्योर्ड लोन लिया है, उन्होंने कितनी बुकिंग करी है, उन्होंने उनकी कौन कौन सा बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस है जिस दिन आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन आप मांगे। और वन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइस, पैसा आ रहा है इसलिए सर्टिफिकेट साइन मत करना। दिस इज द माय ओन एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। आई नेवर साइन एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट जिन्होंने मेरे को पैसा अट्रैक्ट किया, और इसी वजह से मैं आज आपके सामने ये जो है अपना एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन कर पा रहा हूं, अदरवाइज आई वुड हैव नॉट रीच्ड टू दिस लेवल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो माय Wonderful. Wonderful, sir. Wonderful. And your answer is backed up by very practical experiences. So, if I summarize this, that caution is required before issuing any kind of certificate, right? Yes, yes, absolutely. No need to sign any document, just by closing our eyes. We have our institute and our degree is very esteemed. We should not, create some different thoughts for another person, or, Right, right. So, sir, next question is, what is the procedure for empanelment, and is the fees fixed or determined by bidding? एम्पेनलमेंट के लिए जो देर इज नो प्रोसीजर, मैं आपको बता देता हूँ। कोई बैंक ऐसे जनरली एम्पेनलमेंट नहीं करता है। वो मैंने आपको बताया था, वो अपॉर्चुनिटी आपको खुद को क्रिएट करनी है। देखिए, ये बैंक को नहीं पता होता है कि ये ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट? आप जब जाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बोला, रेरा एक्ट में कहीं नहीं लिखा होगा, ये आपके खुद के इंडिविजुअल थॉट से और आपके एक्सपीरियंस से आता है। और रही बात फीस की, तो आई थिंक मुझे कहना नहीं चाहिए, बट पैसा मिले तो ही काम करना चाहिए और अच्छा मिले तो ही काम करना चाहिए, अदरवाइज यू गिव अप। आई एम टेलिंग यू, दिस इज माई अगेन ऑन एक्सपीरियंस। डोंट, मैंने बोला ना आपको, वो सर्टिफिकेट का मेरे को ऐसा अमाउंट मिल रहा था, यू विल नॉट बिलीव, बट आई डिड नॉट टेक, आई डिड नॉट एक्सेप्ट दैट वर्क बिकॉज जस्ट ऑफ द मनी ओनली। You accept the challenges, the money will automatically follow you. This is my own experience. So fees is determined by the individual chartered accountant at their own. So this is my input for that answer to. Okay, okay. Sir, next question is, what is the normal assignment given by RERA to CA firms? I think this you have already covered. And See, a रेरा डू normal, नॉट गिव एनी असाइनमेंट। देखिए, रेरा में तो yeah. एम्पेनलमेंट होता है फोरेंसिक ऑडिट के लिए, इंटरनल ऑडिट के लिए। इंटरनल ऑडिट तो इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो जैसे गवर्नमेंट में होता है वैसे ही। यस, लेकिन एक फोरेंसिक ऑडिट का जो मैं बताना भूल गया Mm-hmm. प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी में, तो आप देखेंगे कि काफी सारी अथॉरिटीज जो है उन्होंने फोरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किए हैं जब डाइवर्जन ऑफ मनी हो जाता है। तो Okay. आप वहां पे एम्पेनलमेंट होता है, तो एज ए फोरेंसिक ऑडिटर भी आपका वहां पे स्कोप बढ़ता है। Okay, sir. Next question is, how do I prepare for obtaining RERA certificate from TG government? विच गवर्नमेंट? TG government. आई थिंक यू Or, हैव टू, yeah, I think the query is like RERA certificate from the government.
No, I think this query is not clear to me. Ask the Okay. concerned person to contact me directly. I will explain it. My mobile number is there. He can Okay. contact me. Okay. This question is from MJ Jagdishwar. So you can directly contact with Birla sir. My contact number is there. He can contact me. Yeah. Sir, shall I take next question? Yes, please. Yeah. Whether RERA has jurisdiction to hear the matter related to subvention differences between allottee and builder. No, subvention difference is not. See, the question is that, again, I'll tell you, there is no particular issue. Subvention issue related to is the bank, right? Okay. So that RERA does not have a jurisdiction for that. Again, the concerned person, I request the concerned professional to please contact me and explain this case me in detail so I can guide him properly. Okay. Sir, next question is for applying RERA registration in latest form in Maharashtra, is it compulsory to provide the name of 2 chartered accountants as a professional during the registration? Is it necessary for registration? What will be responsibility of a chartered accountant in case of registration done by using their name as a professional? See, now recently the Maharashtra RERA has changed their way of making an application for registration. So a little bit I am not much aware about that. But if I see in a different way, see, it is not a compulsory because the promoter can change the chartered accountant anytime. But Okay. if something is there, then if they have fixed up, then obviously they have to provide. Otherwise, the chartered accountant they can change anytime. आज मैं ऑडिटर हूँ किसी फर्म का, कल ऑडिटर नहीं रहूं तो कोई अथॉरिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट. Right. Sir, a few people have asked that whether we need to pass any additional exam for certification to do RERA compliances or our CA qualification is sufficient. So according to me, CA qualification is sufficient. CA qualification तो CA है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और वो रेरा एक्ट में लिखा हुआ तो वो तो उसके अलावा तो कुछ है नहीं. बट हाँ, अपने इंस्टीट्यूट में एक रेरा सर्टिफिकेशन कोर्स भी आई थिंक इट इज देयर. तो टू एनहांस आवर नॉलेज and to gain more and more knowledge and experience, definitely we can join, so it can help for like we have a many certificate courses at our institute, so that can help to the profession. Okay. Sir, next question is whether RERA registration is necessary for layout developers, plot development also, yes, who develop land with their own source and capital. I think this you have already covered and you told that it is mandatory for them also. Sir, in case of joint allottee, who can file the appeal? Both. Joint allottee complaint needs to be filed in joint name. Okay. Sir, next question is RERA registration has been granted. However, additional floors, approval for such additional floor is not granted by competent authority, have been constructed and sold. Allottee came to know this at a later date. Should he file complaint? Yes, they can file. Okay. Ask the concerned professional to contact me. I will advise him. I will guide him that how he can advise his client. Okay. So a few people are asking about the presentation or the summarized document for RERA. प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया किस तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रेजेंट होना पड़ता है. आप कभी भी एक प्रोसीडिंग अपीयर करके देखिए, आपको उसकी फाइल पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए. जो लीगल ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीटली डिफरेंट होनी चाहिए. तो जो प्रेजेंटेशन का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया है. एंड नाउ इट्स डिपेंड ऑन द ड्राफ्टिंग, दैट अगेन इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल पर्सन दैट हाउ ही ड्राफ्ट. Okay. Sir, this question is also related to the presentation which you have prepared. So that may be a summarized document which can be referred by professionals. वो जो डॉक्यूमेंट है वो हर स्टेट ने एक प्रिस्क्राइब किया गया फॉर्म, उसी तरीके से उस फॉर्म में ही आपको लिखना पड़ता है. अब फैक्ट्स क्या है, लो पॉइंट क्या है, वो डिपेंड करता है केस टू केस. बट हर स्टेट अथॉरिटी ने अपने एक फॉर्म प्रिस्क्राइब किए हैं. उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में ही आपका प्रेजेंटेशन जाता है. ओके. तो मैंने जो अपने प्रेजेंटेशन में कवर किया था वो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स थे. ओके. सर, वन मोर क्वेश्चन इज देयर. That builder has allotted units to allottee without RERA registration. Now builder wants to register the project. Can he do so? And second, what is the penalty and interest
which could be He chargeable to him. can do, RERA Act says the 5% of the cost of project is the penalty, but it's depend on the authority that how they levy it. Generally मैंने अभी तक नहीं देखा किसी ने 5% लगाया हो पेनल्टी. रेरा अथॉरिटी भी थोड़ा फ्लेक्सिबल लिबरल है, वो कम पेनल्टी लगाते हैं, बट पेनल्टी लगेगा. सेक्शन में लिखा 5% of the cost of the project. Okay, okay. So 5% of the cost of the project will be the penalty for this. Yes. Sir, is housing cooperative societies covered under RERA Act 2016? That is one of the question, and it seems to me that it covers. Am I right? That is the question from if they are developing a project. If they are developing a project. Yeah. Does the second buyer gets covered under allotee? Yes. I already explained. Yeah. Are RERA of different states are different? No, act is a central act. The state prescribe the rules and regulation. Okay. So every state may have a different rules and regulation. Otherwise, it is a central act. Okay. One more question is there that does the second buyer gets covered under the allotee, which we have covered, and whether they can file a complaint for non-completion of common area from the original letter of possession? Yes. Okay. So, sir, this was the last question. It was a wonderful session. And many listeners also given the feedback that they have appreciated your session and also the practical experiences given by you. Thank you. So, let us give heartfelt appreciation to Birla sir, who have contributed to making the evening a success. On behalf of Committee of Commercial Laws, Economic Advisory, NPO Cooperative of ICAI, I convey my heartfelt thanks to Birla sir for spending time with us and giving us valuable insights. And finally, thank you. I would like to convey my gratitude to everyone here for taking time to join us today and for assisting us making this event a huge success. I would also like to thank Advocate Mayank Vasudev, Secretariat of this committee, for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.